یہ کہانی اس خاتون کی ہے جس نے کرپٹو کرنسی یعنی ون کوائن کے ذریعے اربوں لوٹے اور دنیا سے غائب ہو گئی۔ روجا اگنتوا خود کو کرپٹو کرنسی کی رانی یا کرپٹو کوائن کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کو بتاتی تھیں کہ انہوں نے بٹ کوائن کے مقابلے میں ایک نئی کرپٹو کرنسی ایجاد کر لی ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اربوں ڈالر کا سرمایہ اس کرنسی میں لگا دیں، اور پھر 2 سال پہلے روجا اچانک غائب ہو گئیں۔ یہ جون 2016 کی بات ہے جب ڈاکٹر روجا اگنتوا اپنے ہزاروں مداحوں کے سامنے لندن کے مشہور اسٹیڈیم ویمبلی ایرینا کے اسٹیج پر نمودار ہوئیں۔ تالیوں کی گونج میں انہوں نے حاضرین کو بتایا کہ وہ دن دور نہیں جب ون کوائن دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی بن جائے گی اور دنیا میں کسی بھی مقام سے لوگ مالی ادائیگیوں کے لیے اس کرنسی کو استعمال کر سکیں گے۔ تو اردو دنیا کے ناظرین، یاد رہے کہ دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن ہے اور آج بھی یہ سب سے بڑی اور مشہور ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ بٹ کوائن کی کامیابی کے بعد کرپٹو کرنسی کے خیال کو مزید تقویت ملی اور دنیا بھر میں سے بے شمار لوگوں نے دولت بنانے کے اس نئے طریقے میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ویمبلی اسٹیڈیم کے اسٹیج پر کھڑی ڈاکٹر روجا کا کہنا تھا کہ ون کوائن اصل میں بٹ کوائن کا قاتل ثابت ہوگا اور 2 سال بعد کوئی بٹ کوائن کا نام بھی نہیں لے گا۔ 2016 کے پہلے 6 ماہ میں صرف برطانیہ میں لوگ ون کوائن میں تقریباً 30 ملین یورو کی سرمایہ کاری کر چکے تھے، جن میں سے 2 ملین یورو صرف ایک ہفتے کے دوران لگائے گئے تھے۔ اگست 2014 سے مارچ 2017 کے درمیانی عرصہ میں درجنوں دیگر ممالک میں بھی لوگوں نے 4 ارب یورو کے بٹ کوائن خریدے۔ ان ممالک میں پاکستان سے لے کر برازیل، ہانگ کانگ سے لے کر ناروے اور کینیڈا سے لے کر یمن تک کے ممالک بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ فلسطین بھی۔ اردو دنیا کے معزز ناظرین، اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو آپ کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں سینکڑوں مختلف آراء نظر آئیں گی، جن میں کچھ کو پڑھ کر آپ حیران رہ جاتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو صاف دکھائی دیتا ہے کہ کسی ماہر کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ رائے میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک بات آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کرنسی کی قیمت یا قدر اتنی ہی ہوتی ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں، چاہے یہ بینک آف انگلینڈ کی جاری کردہ کرنسی نوٹ اور سکے ہوں، قیمتی پتھر ہوں یا اس قسم کی کوئی اور چیز۔ کوئی بھی کرنسی اسی وقت کام کرتی ہے جب ہر کوئی اس سے تسلیم کرتا ہے۔ کافی عرصے سے لوگ اس کوشش میں رہے کہ وہ کوئی ایسی ڈیجیٹل کرنسی بنائیں جو ملکی سرحدوں کی محتاج نہ ہو اور اس کا انحصار کسی خاص ملک کی کرنسی پر نہ ہو، لیکن ان لوگوں کو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہتی تھی کہ کوئی ایسا ادارہ یا شخص ہونا چاہیے جو اس کرنسی کی سپلائی کو اوپر نیچے کر سکے، اور دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل کرنسی کی نقل بنانا بھی بہت آسان ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بٹ کوائن کے آنے پر بہت سے لوگ خوش ہوئے اور انہیں یقین ہونے لگا کہ اس میں کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بٹ کوائن کا انحصار ایک خاص قسم کے ڈیٹا بیس پر ہے جسے بلاک چین کہا جاتا ہے۔ بلاک چین ایک قسم کی بہت بڑی کتاب ہے اور اگر آپ بٹ کوائن خریدتے ہیں تو اس کتاب کا ایک نسخہ یا کاپی آپ کو بھی مل جاتی ہے۔ مثلا میری طرف سے جب بھی ایک بٹ کوائن کسی دوسرے شخص کو بھیجا جاتا ہے، یہ چیز اس کتاب میں نوٹ ہو جاتی ہے جس کی ایک کاپی بٹ کوائن کے تمام صارفین کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کوئی حکومت، کوئی بینک اور نہ ہی وہ شخص جو بٹ کوائن کو ایجاد کرتا ہے اس سکے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس ساری چیز کے پیچھے ریاضی کے اصول کار فرما ہیں، لیکن نہ تو بٹ کوائن کی نقل بنائی جا سکتی ہے، نہ ہی بٹ کوائن کی کتاب کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اور کسی بٹ کوائن کو 2 مرتبہ خرچ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس ساری بات میں اصل نقطہ یہ ہے، ڈیٹا بیس ہی دراصل وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر بٹ کوائن جیسی کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی چلتی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے چاہنے والوں کے لیے یہ کرنسی کی جدید ترین انقلابی قسم ہے اور موبائل فون رکھنے والے ہر شخص کو آن لائن بینکنگ کی سہولت فراہم کر دی۔ اور اگر آپ کسی ڈیجیٹل کرنسی کے شروع کے خریداروں میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر روجا کا کمال یہ ہے کہ انہیں یہ تمام بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنے خیال کو دھڑا دھڑ لوگوں میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔
डॉक्टर रोजा की लंदन वाली बड़ी तकरीब के 4 माह बाद अक्टूबर 2016 के शुरू में मुलाजमतें दिलवाने वाली एक कंपनी ने ब्लॉकचेन के माहर को बुलाया और इन्हें एक बड़ी दिलचस्प मुलाजमत की पेशकश की। इन्हें बताया गया कि बल्गारिया में क्रिप्टो करेंसी की एक नई कंपनी को चीफ टेक्निकल ऑफिसर दरकार है और इसके लिए 2,50,000 पाउंड सालाना की पुरकशिश तनख्वाह के अलावा घर और गाड़ी भी दी जाएगी। इस दिन को याद करते हुए वो ब्लॉकचेन का माहर कहता है कि मैं सोच रहा था कि कंपनी में मेरा काम क्या होगा। मैंने सोचा कंपनी को सबसे पहले ब्लॉकचेन चाहिए होगा क्योंकि इनके पास ब्लॉकचेन नहीं है। मैंने एजेंट से कहा, आया ये वाकई क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है? एजेंट का जवाब था कि मेरी बात दुरुस्त है, ये क्रिप्टो कंपनी थी जो कुछ अरसे से काम भी कर रही थी, लेकिन इनके पास ब्लॉकचेन नहीं था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कंपनी को ब्लॉकचेन बनाकर दें। ब्लॉकचेन के माहर ने पूछा, कंपनी का नाम क्या है? एजेंट का जवाब था वन कॉइन, लेकिन ब्लॉकचेन के माहर ने यह मुलाजमत नहीं ली। उर्दू दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वाक़े के चंद माह पहले जैन मैकडम नामी खतून को इनकी एक दोस्त का फ़ोन आया था, जिसमें दोस्त ने जैन को एक ऐसी चीज़ में सरमायाकारी का बताया जिसमें लाखों पाउंड बनाए जा सकते थे। चनाचे ग्लास्को में अपने घर में बैठी हुई जैन ने कंप्यूटर खोला और वन कॉइन के लिंक पर क्लिक कर दिया। वो अगला 1.5 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठी मुख्तलिफ लोगों को ये कहते सुनती रहीं कि वन कॉइन कितनी ज़बरदस्त करेंसी है और ये किस तरह आपकी किस्मत बदल सकती है। जैन के बकौल इनकी वेबसाइट पर नजर आने वाले तमाम लोग बहुत पुरजोश और जज्बात से भरपूर बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपको ये ऑनलाइन सेमिनार सुनने का मौका मिला। आप हमें सही वक्त पर ज्वाइन कर रही हैं और जल्द ही ये करेंसी भी बिटकॉइन जैसी बड़ी करेंसी बन जाएगी, बल्कि बिटकॉइन से भी बड़ी डिजिटल करेंसी। जब तक वो सेमिनार ख़त्म हुआ, जैन ने वन कॉइन में 1,000 यूरो लगाने का फैसला कर लिया था। आपने हज़ारों यूरो के वन कॉइन के टोकन खरीदे। इन टोकनों से जो कॉइन हासिल हुए वो आपके अकाउंट में जमा हो गए। जैन को बताया गया कि एक दिन वो इन कॉइन्स को वापस यूरो या पाउंड्स में तब्दील कर सकेंगी, पर वन कॉइन के प्रमोटर्स ने कहा कि अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं तो फिर आपको वन कॉइन का कोई बड़ा पैकेज लेना चाहिए। सबसे छोटा पैकेज 140 यूरो का था और सबसे बड़ा 1,18,000 यूरो का। एक हफ्ते बाद जैन ने टाइकॉन पैकेज खरीद लिया जिसकी कीमत 5,000 यूरो थी। कुछ ही अरसे में जैन अपने 10,000 यूरो वन कॉइन में लगा चुकी थी। कुछ ही अरसे में ये मालियत 1,00,000 यूरो हो गई, यानी इनके सरमाए में 10 गुना इजाफा हो चुका। लेकिन 2016 के आखिरी दिनों में एक अजनबी शख्स ने इंटरनेट पर जैन से रब्ता किया। इसके बकौल इसका मकसद सिर्फ इन लोगों से रब्ता करना है जिन्होंने वन कॉइन में सरमायाकारी की। इनकी ये गुफ्तगू जल्द ही धुआंधार बहस में तब्दील हो गई, क्योंकि इस शख्स का इसरार था कि जैन एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन इस गुफ्तगू ने जैन की ज़िंदगी को एक नया रुख दे दिया। वो अजनबी शख्स जो बिटकॉइन के ज़बरदस्त हामी थे और क्रिप्टो करेंसी की ज़ोर शोर से वकालत करते थे, उसका ख्याल था कि वन कॉइन डिजिटल करेंसी के ख्याल के लिए बदनामी का बायस बनेगा, और उन्होंने जैन को साफ साफ बता दिया कि वन कॉइन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगले कई हफ्तों के दौरान उस शख्स ने जैन को बेशुमार मालूमात भेजी जिनमें बताया गया था कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। कई मज़ामीन, इंटरनेट लिंक्स और यूट्यूब वीडियोस के अलावा उसने जैन को इंटरनेट के जरिए ऐसे शख्स से भी मुतारफ करवाया जो खुद ब्लॉकचेन बनाने के माहिर थे और ये बात कह चुके थे कि वन कॉइन के पास कोई ब्लॉकचेन मौजूद नहीं। उन्होंने अपने वन कॉइन ग्रुप में शामिल लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आया वन कॉइन के पास ब्लॉकचेन है भी या नहीं। पहले तो जैन को ये कहा गया इन्हें ये बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो अप्रैल 2017 में आखिरकार इन्हें सच मालूम हो गया। इनके नाम किसी ने जो पैगाम रिकॉर्ड कराया था और इसमें कहा गया कि जैन वन कॉइन वाले इस किस्म की मालूमात को मंजर आम पर नहीं लाना चाहते, जिसकी वजह यह है कि इस मकाम पर कोई गड़बड़ ना हो जाए जहां ये ब्लॉकचेन रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि वन कॉइन की ऐप के लिए ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं होती। यूँ हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दरअसल एक SQL सर्वर की शक्ल में है जिसके अंदर डेटाबेस मौजूद है, लेकिन इस वक्त तक जैन को यह बात मालूम हो चुकी थी कि अकेले SQL डेटाबेस से कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं चल सकती। ब्लॉकचेन के बरक्स मैनेजर जब चाहे इस किस्म के डेटाबेस में तब्दीली कर सकता है।
इसका मतलब ये था कि जैन को अब समझ आ गई थी कि इनके 1 कॉइन की कदर में जो इजाफा हो रहा था वो बिल्कुल बेमैनी था। 1 कॉइन का कोई एहलकार कहीं बैठा हुआ महज हिंद से बदल रहा था, लेकिन इस वक्त तक जैन, इनके घर वाले और दोस्त अपनी तकरीबन 2.5 लाख पाउंड 1 कॉइन में झोंक चुके थे। लेकिन इस बज़ाहिर कामयाबी के पीछे मामलात खराब होना शुरू हो चुके थे। मसलन एक अरसे से जिस एक्सचेंज के खुलने की बातें हो रही थीं, इसमें मुसलसल तखीर हो रही थी। 1 कॉइन का दावा था कि लोग इस एक्सचेंज से अपने 1 कॉइन के बदले में दूसरी करेंसी ले सकेंगे। इसका नतीजा ये था कि सरमायाकार दिन ब दिन फिक्रमंद होते जा रहे थे। इस मसले को हल करने के लिए अक्टूबर 2017 में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में यूरोप भर के 1 कॉइन के प्रोमोटर्स का बहुत बड़ा इजलास मुनक़िद करने का ऐलान किया गया। लेकिन जब वो दिन आया तो डॉक्टर रूजा, जिनके बारे में मशहूर था कि वो वक़्त की पाबंद हैं, वहाँ नहीं पहुँची। कुछ लोग फिक्रमंद थे कि शायद इन्हें मार दिया गया है या इन्हें किसी ऐसे बैंक के कहने पर अगवा कर लिया गया जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इतने बड़े इनकलाब से डर गए थे। अल्बर्ट्स ये गरीब इलाके में पले बड़े हैं, फिर वो नेटवर्किंग मार्केटिंग की दुनिया में आए, जिसे उर्फ़े आम में मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM भी कहा जाता है। उन्होंने खूब पैसा बनाना शुरू कर दिया। दोनों मियाँ बीवी कहते हैं कि गुज़श्ता 30 वर्षों में उन्होंने $100 मिलियन कमाए। मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे उर्फ़े आम में पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है, काम कैसे करती हैं। मैं $100 मालियत की विटामिन की गोलियां खरीद कर बेचना शुरू करता हूं। मैं अपने दोस्तों को थोड़े से मुनाफा पर विटामिन की गोलियों का डब्बा बेचता हूं। फिर मैं अपने उन दोस्तों को मुलाजिम रख लेता हूं और वो इसे आगे बेचते हैं। वो अब मेरी डाउन लाइन का हिस्सा बन चुके हैं और ये सिलसिला इसी तरह वसी होता जाएगा और ये 25 सतहों तक नीचे जा सकता है। यूं इस नेटवर्क में हर कोई विटामिन की गोलियां बेच रहा होगा और इस नेटवर्क की बुलंद तरीन सतह पर मैं सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा हूँ। एमवे और हर्बल लाइफ जैसी कंपनियां मार्केटिंग के इस तरीकों को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मार्केटिंग का ये तरीका मुतनाज़े ज़रूर है क्योंकि इसमें चंद लोग ही पैसे बनाते हैं। MLS इसलिए भी मुतनाज़े है कि इसमें मुनाफा कमाने के दावे बहुत बुलंदो बाला किए जाते हैं और सेल टारगेट बहुत मुश्किल रखे जाते हैं। इन्हें 1 कॉइन के दुबई में होने वाले शो के लिए दावत मिली, जहां इनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में बहुत दौलत कमा रहे थे। जब वो दुबई से वापस लौटे तो उन्होंने अपनी सारी तवानाइयां क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में लगा दी और अपने नेटवर्क के तमाम लोगों से कहा कि जो कुछ भी कर रहे हो इसको रोक दो और 1 कॉइन बेचना शुरू कर दो। हमने अपनी टीमों को इकट्ठा किया और पागलों की तरह काम करने लगे। पहले माह हमने बराए नाम सरमायाकारी से $90,000 कमाए। डॉक्टर रूजा का कमाल ये था कि उन्होंने कामयाब मल्टी लेवल सेलर्स को अपने साथ लगाया और अपने जाली डिजिटल कॉइन को बेचना शुरू कर दिया। यही 1 कॉइन की कामयाबी का राज था। वो न सिर्फ एक जाली क्रिप्टो करेंसी थी, बल्कि डॉक्टर रूजा और इनके नए साथियों ने इसे एक पुरानी तर्ज की पिरामिड स्कीम में बदलकर मसनूआत के तौर पर फरोख्त करना शुरू कर दिया और 1 कॉइन जंगल में आग की तरह फैल गया। अल्बर्ट्स ने 1 कॉइन के जरिए जो भी दौलत बनाई, इसका 60% इन्हें कैश की सूरत में मिलता था, जबकि बकिया 40% 1 कॉइन की शक्ल में। अल्बर्ट्स कहते हैं वो 1 कॉइन को मार्केट करके दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनना चाहते थे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में शामिल अफराद अपने करीबी लोगों को रिक्रूट करते हैं, जिससे एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाता है और किसी एक फर्द को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना बहुत मुश्किल होता है। अगर इस शय को बेचने वाले ने इसमें सरमायाकारी भी कर रखी है तो फिर वो मुतासरा अफराद में शामिल हो जाता है। अल्बर्ट से पूछा गया कि क्या आपको इस बात पर निदामत है कि आपने लोगों को एक ऐसी चीज़ बेची जिसका कोई वजूद ही ना था और आपने इस अमल से इतनी दौलत कमाई? तो इसका जवाब था कि मुझे जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन कोई नदामत नहीं। किसी चीज़ पर यकीन करने से आप पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। मुझे इल्म नहीं था कि ये सब झूठ हो सकता है और इस वक्त तक मैं ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये मालूम करना इंतहाई मुश्किल है कि 1 कॉइन को खरीदने में कुल कितनी रकम खर्च की गई। दस्तावेज ज़ाहिर करती हैं कि 2014 और 17 के दरमियानी अरसा में 4 अरब यूरो खर्च किए गए। छुपाई हुई दौलत को ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। मुजरम कंपनी और बैंक अकाउंट्स का एक ऐसा पेचीदा निज़ाम बनाते हैं जिसमें इनके असासे नज़रों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन वो मौजूद रहते हैं जिन्हें वो मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फ्रांसीसी सहाफ़ी ने कई माह तक 1 कॉइन के निज़ाम को समझने की कोशिश की और जितना मुमकिन हो सका कंपनियों के नाम और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इकट्ठी की। बरतानिया में ये कंपनियां कायम करना बहुत आसान है और ये कानूनी भी लगती हैं। इसी वक्त अमरीकी महकमा इंसाफ ने डॉक्टर रूजा की गैर मौजूदगी में इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग,
फ्रॉड के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन इस सब के बावजूद वन कॉइन का काम चलता रहा और लोग इसमें पैसा लगाते रहे और ये काम आज भी चल रहा है। वन कॉइन के दफातर आज भी खुले हैं। उर्दू दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फ्रॉड की वाज़ेह निशानियों के बावजूद इतने ज़्यादा लोग वन कॉइन पर एतबार क्यों करते रहे? क्योंकि वन कॉइन के सरमायाकारों ने बताया कि इब्तदा में इनको ये डर था कि वो एक बड़े मुनाफा से महरूम हो जाएंगे। इन्हें बताया जाता था कि वन कॉइन बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ी चीज़ है, और जब सरमायाकार बिटकॉइन से मुंसलिक लोगों की तकदीर बदलने की कहानियाँ सुनते थे तो इन्हें डर लगता था कि वो कहीं वन कॉइन के ज़रिए अमीर होने का मौका ज़ाया ना कर दें। कुछ लोग डॉक्टर रूजा की शख्सियत की वजह से वन कॉइन से जुड़े। इन सरमायाकारों को क्रिप्टोकरेंसी की टेक्नोलॉजी का कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर रूजा को इकोनॉमिस्ट कॉन्फ्रेंस में तकरीरें करते देखा करते थे। इनको डॉक्टर रूजा की आला तालीम याफ्ता होने की यकीन दहानी के लिए इनकी डिग्रियां दिखाई गईं और फोर्ब्स मैगजीन में छपने वाली तस्वीर को बतौर शहादत पेश किया गया कि वो ऐसी कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं जिनके साथ जुड़े रहने से इनकी किस्मत भी बदल सकती है। वन कॉइन में सरमायाकारी करने वालों को हमेशा बताया जाता था कि अब वो वन कॉइन फैमिली के रुकन हैं और इन्हें वन कॉइन के बारे में मनफी बातें फैलाने वालों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बनाया जाता जहाँ इन्हें अपनी लीडर की तरफ से मालूमात मिलती। बिटकॉइंस वाले दरअसल वन कॉइन से नफरत करते हैं। इनकी बातें ना सुने, ना ही गूगल की बातें सुने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कहते हैं कि वन कॉइन भी एक मसलक या मजहबी गिरोह की माने था, जिसमें शामिल लोगों को ये बावर कराया जाता था कि वो कितनी बड़ी तब्दीली की मुहिम का हिस्सा हैं जो दुनिया को बदलने जा रही है। एक मसाली दुनिया में ये उम्मीद की जाती है कि हुकूमती अदारे या रेगुलेटरी सार्फिन को वन कॉइन जैसे धोखाधड़ी से महफूज रखेंगे। FCA ने 2016 में वन कॉइन के बारे में अपनी वेबसाइट पर एक इंतबाह जारी किया था कि वन कॉइन में सरमायाकारी से होशियार रहें, लेकिन इस इंतबाह को 1 साल बाद इसे वहां से हटा लिया गया। FCA की तरफ से वन कॉइन के बारे में अपनी वार्निंग को वापस लेने को वन कॉइन के हामियों ने इसके दुरुस्त और कानूनी होने की शहादत के तौर पर पेश किया। जब FCA ने अपनी वार्निंग को वेबसाइट से हटा लिया तो बरतानिया में वन कॉइन की कई तकरीबात का इनेकाद हुआ। लोग इसमें सरमायाकारी करते रहे। ये हकीकत है कि वन कॉइन एक आलमी ऑपरेशन था। ये भी हकाम के लिए परेशानी का सबब था। लंदन की पुलिस ने 2 साल तक वन कॉइन के बारे में तहकीक करने के बाद वो तहकीकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लंदन पुलिस ने अपने बयान में कहा कि चूँकि वन कॉइन से मुतल्लिक कंपनियाँ और अफराद बरतानिया के दायरे इख्तियार से बाहर हैं, इसलिए हम बरतानिया में इनके किसी असासी की निशानदेही नहीं कर सकते जिससे मुतासरीन के नुकसान को पूरा किया जा सके। ताहम पुलिस ने मजीद कहा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन्हें वन कॉइन के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। युगंडा के इलाके में ज़्यादा लोगों की आमदन का जरिया केले, मीठे, आलू, मटर और मूंगफली की पैदावार है। एक 22 साला नौजवान इसी इलाके के रहायशी थे। वो वन कॉइन ख़रीदने के लिए 7 लाख शिलिंग इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 4 लाख शिलिंग तो खुद इकट्ठे कर लिए, मगर वन कॉइन में पहली सरमायाकारी के लिए मजीद 3 लाख शिलिंग चाहिए थे। वो नौजवान युगंडा के हज़ारों लोगों में से एक हैं जिन्होंने डॉक्टर रूजा की जाली क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी की। जब यूरोप में लोगों की वन कॉइन में दिलचस्पी कम हो गई तो अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और इंडिया वन कॉइन के लिए बहुत अहम हो गए और वहाँ से सरमायाकारी होने लगी। प्रोडेंस एक नर्स हैं। उन्होंने सोचा कि वो वन कॉइन फ़रोख्त करके दौलत कमा सकती हैं और उन्होंने मज़ीद लोगों को वन कॉइन ख़रीदने पर कायल करना शुरू कर दिया। वन कॉइन के एक प्रोमोटर ने प्रोडेंस को एक अच्छी सी कार ख़रीद कर दी ताकि वो लोगों को मुतासर कर सकें। इनको हदायत की जाती कि वो अपनी कार में ऐसे वक्त लोगों के पास जाएं जब वो फसलें काश्त कर रहे हों और इनके पास पैसे हों। प्रोडेंस कहती हैं कि देहात में लोग शहरों में बसने वाले लोगों पर एतबार करते हैं। बिशप फ्रेड की ऐसी वीडियो मौजूद हैं जिनमें वो दौरान इबादत वन कॉइन की मशहूरी करते नजर आते हैं। बिशप फ्रेड युगंडा में वन कॉइन के सबसे बड़े प्रमोटर हैं, लेकिन अब उन्होंने कम अज़ कम चर्च में इसकी तशहीर करना ख़त्म कर दी है। जबकि डॉक्टर रूजा आज भी गायब हैं। किसी शख्स को तलाश करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि वो शख्स कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बढ़ा और अमीर होने से पहले इसका तर्ज़ ज़िंदगी क्या था।
फिर ये जानने की कोशिश करें कि दौलतमंद होने के बाद वो कहाँ जाना पसंद करता था। 5 नवंबर 2019 को डॉक्टर रूजा के भाई को अमेरिका की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने एक वकील के खिलाफ गवाही दी, जिस पर इल्जाम है कि इसने $400 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की, जो OneCoin ने अमेरिका से बनाए थे। डॉक्टर रूजा के भाई ने कई इल्जामात को तस्लीम कर लिया और अदालत को ऐसा तासर दिया कि इनकी बहन ने इन्हें इसी तरह धोखा दिया जिस तरह उन्होंने दूसरे सरमायाकारों को धोखा दिया। OneCoin का फ्रॉड टेक्नोलॉजी के एक तारीख पहलू से पर्दा उठाता है। टेक्नोलॉजी यकीनन इन लोगों के लिए नए मौके पैदा करती है जो इसे समझते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसे अफराद के इस्तेहसाल का जरिया भी बन जाती है जो इसे समझते नहीं हैं। डॉक्टर रूजा ने मुआशरे के इन्हीं कमज़ोर पहलुओं से फ़ायदा उठाया। इन्हें मालूम था कि दुनिया में ऐसे मायूस, लालची या उलझे हुए लोग मौजूद होंगे जो इनके बहकावे में आकर OneCoin में अपनी जमा पूंजी झोंक देंगे। डॉक्टर रूजा को यह भी पता था कि इंफॉर्मेशन के इस दौर में झूठ और सच को अलहदा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। डॉक्टर रूजा को यह भी मालूम था कि OneCoin में छुपे फ्रॉड से अवाम को बचाने वाले कानून साज अदारे, पुलिस और मीडिया को ये समझने में बहुत देर लग जाएगी। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का शुमार भी इन बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के मुंतज़मीन में शामिल हो गया जो क्रिप्टो करेंसी की मुखालफत करते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी खतरनाक है और मौत का सबब बनती है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मजीद कहा, क्रिप्टो करेंसी की खास बात यह है कि इन्हें नामालूम तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अच्छी बात नहीं है। लोग इसकी मदद से जानलेवा मंशियात खरीदते हैं जिससे लोगों की बराह रास्त मौत वाक़या होती है। यूरोपीय ममालिक की मुश्तरका पुलिस यूरोपोल के मुताबिक यूरोप में 3 से 4 अरब पाउंड्स के काले धन को क्रिप्टो करेंसी के जरिए सफ़ेद किया जा रहा है। रॉब रेन राइट ने कहा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये तनबी ऐसे वक्त में सामने आई जब बिटकॉइन की कदर, जो दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सतह पर पहुंच चुकी थी, अब गिरकर निसफ से भी कम होगी। यूरोपोल और दीगर इदारों के मुताबिक काले धन से हासिल किए गए 100 अरब पाउंड्स में से 3 से 4% रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए सफ़ेद किया जाता है। दुनिया भर में मुख्तलिफ नौइयत की क्रिप्टो करेंसियाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनमें सबसे मारूफ बिटकॉइन है। इन क्रिप्टो करेंसियों का मकसद रवायती करेंसी जैसे डॉलर, यूरो और पाउंड का नेमुल बदल होना है, लेकिन रवायती करेंसी के बरक्स क्रिप्टो करेंसी को हुकूमत या बैंक जारी नहीं करते और ना ही इनकी निगरानी करते हैं, बल्कि ये करेंसियां कंप्यूटर पर रियाजी के पेचीदा फार्मूलों की मदद से बनाई जाती हैं और इस अमल को माइनिंग कहा जाता है। इस अमल के जरिए बनाई गई रकम की निगरानी दुनिया भर में कायम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए की जाती है और इसमें रकम हासिल करने वाले शख्स को इनकी असल शनाख्त की बजाय कंप्यूटर पर दिए गए वर्चुअल पते के जरिए पहचाना जाता है। क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से कानून साजी कम होने की वजह से कई जराइम पेशा अनासर ने क्रिप्टो करेंसी को अपना लिया है। क्योंकि रकूम का तबादला और तरसील गैर सरकारी ज़राए से होती है, इसलिए इसका पता लगाना ज़्यादा मुश्किल है। हत्ता कि अगर इनकी शनाख्त कर भी ली जाए, लेकिन इस रकम या इनके एहसासों को हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रवायती बैंकिंग के सिस्टम में शामिल ही नहीं। यूरोपोल ने एक और तरीका दरियाफ्त किया जिसकी मदद से जराइम पेशा अनासर काले धन को सफ़ेद करते हैं। इस तरीके के जरिए जराइम पेशा अनासर जराइम की मदद से हासिल की गई रकम को बिटकॉइन में तब्दील कर देते हैं। इस रकम को वो मजीद छोटे हिस्सों में तब्दील करके कई ऐसे लोगों को फ्राहम कर देते हैं जिनके इन अनासर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लोग बिटकॉइन को बाद में रवायती करेंसी में तब्दील कर देते हैं और इसे जराइम पेशा अनासर को वापस कर देते हैं। उर्दू दुनिया के नाजरीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प और रिसर्च पर मबनी वीडियो का तसलसल बरकरार रहे। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक करें। सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।